नमस्कार दोस्तों, आज मैं और मेरे सांसद सहयोगी राफेल घोटाले की अगला रहस्य और परतें आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं। अब एक बात साफ है कि खुल गया है राफेल की चोरी का खेल और चौकीदार ने ही किया है पूरा घालमेल। और अब की बार ये रहस्य की परतें उजागर हुई हैं। ये सनसनीखेज तथ्य आए हैं गोवा से। गोवा के मंत्रिमंडल में जिस प्रकार से पूर्व रक्षा मंत्री और मौजूदा भाजपा के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर जी ने राफेल के रहस्यों का रहस्य उद्घाटन किया, ये पूरा वार्तालाप उनके मंत्री विश्वजीत राणे की बातचीत में अब कैद है। और मेरी बात कहने से पहले मैं वो ऑडियो ये चाहूँगा कि आप स्वयं सुनकर, जिसकी प्रतिलिपि आपको हम दे रहे हैं, आप स्वयं सुनकर जायजा लें। ये बातचीत है विश्वजीत राणे, हेल्थ मिनिस्टर गोवा की। Good evening, sir. Boss, good evening. I told call today. There was a 3-hour cabinet meeting. Okay. Just keep it confidential. Just so you all know. There are so many fights, so many fights. Nilesh Kabral has gone and recruited maximum engineers from his constituency. So everybody, Jay Salgaonkar got the list and showed it to him. So everybody was fighting with him and everybody was upset because no work is being done on the recruitment front. Okay. Babu Asgaonkar was fighting with Sudhin Dawekar because his works are not being done. Apart from that, Chief Minister makes one very interesting statement that I have all the information of Rafael in my bedroom. What are you saying? I'm telling you, no? My God. Which you should actually make a story and put it because you can cross-check with somebody who you're close to from within the cabinet. Okay. Because this is how, this is something which he said. That means he's holding them to ransom. Listen to it once again. What are you saying? Of Rafael in my bed. But he was fighting with him and everybody was upset because no work is being done on the recruitment front. Okay. Babu Asgaonkar was fighting with Sudhin Dawekar because his works are not being done. Apart from that, Chief Minister makes one very interesting statement that I have all the information of Rafael in my bedroom. What are you saying? I'm telling you, no? My God. Which you should actually make a story and put it because you can cross-check with somebody who you're close to from within the cabinet. Okay. Because this is how, this is something which he said. That means he's holding them to ransom. I swear. He said it's in my bedroom here only, in the flat. Each and every document of Rafael is with me. Now whether he wanted somebody to go and inform them in Delhi or what it is, I didn't know. I didn't understand. Friends, what is it that the minister is verifying from the cabinet meeting? And let me read the transcript again for you. He says, and I quote, "Apart from that, the chief minister makes one interesting statement, that I have all the information of Rafael in my bedroom." The other person is shocked. He says, "What are you saying?" The minister says, quote, "I'm telling you." The other person says, "My God." The minister says, "Because this is how you know, this is something which he said, that means he's holding them to ransom." The minister further says, I quote, "He said it's in my bedroom, here only in the flat." The minister further says, I quote, "Each and every document of Rafael is with me," unquote. राफेल घोटाले में अब गोवा की भाजपा सरकार के मंत्री ने सनसनीखेज और चौंकाने वाला खुलासा किया है और भ्रष्टाचार की सारी परतें उजागर कर दी हैं। कुछ दिन पूर्व हुई इस हंगामेदार बैठक में गहमा गहमी के बीच जिस प्रकार से
गंभीर रूप से अस्वस्थ होने के बावजूद गोवा के मुख्यमंत्री के पद पर पदेन रहे श्री मनोहर पारीकर ने कहा कि उनका कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि राफेल की सारी फाइलें उनके पास हैं, उनके बेडरूम में, उनके फ्लैट के अंदर मौजूद हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा व राफेल खरीद घोटाले से जुड़े इस पूरे मामले में भाजपा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पारीकर व पूर्व रक्षा मंत्री, उनका यह कहना राफेल के भ्रष्टाचार के सारे आरोपों की आज पुष्टि करता है कि राफेल में हर स्तर पर गड़बड़झाला है, जिसके लिए चौकीदार ही जिम्मेवार है। और मैं ये भी याद दिलाऊंगा कि जब 10 अप्रैल 2015 को चौकीदार गए थे पेरिस, फ्रांस अकेले, तो उस समय भी रक्षा मंत्री मनोहर पारीकर गोवा में मछली खरीद रहे थे। उनके प्रतिनिधिमंडल में, उनके डेलीगेशन में देश के रक्षा मंत्री मनोहर पारीकर नहीं थे, उनके डेलीगेशन में अनिल अंबानी थे। देश जानना चाहता है, हमारे मात्र 3 सवाल हैं आज। नंबर 1, श्री मोदी जी बताइए देश को कि श्री मनोहर पारीकर के पास उनके बेडरूम और फ्लैट में राफेल के घोटाले के कौन से राज दफन हैं। सवाल नंबर 2, राफेल की फाइलों में वो कौन सा गड़बड़झाला या भ्रष्टाचार है जिस पर चौकीदार पर्दा डाल रहा है और जिसके खतरे से आज भी जिन तारों से गोवा की सरकार लटक रही है। तीसरा सवाल, क्या भ्रष्टाचार की इसी कहानी के चलते चौकीदार संयुक्त संसदीय समिति यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की प्रोब से, इन्वेस्टिगेशन से बच रहे हैं, क्योंकि वो भाजपा के लोगों को भी जो संयुक्त संसदीय समिति में बहुमत से होंगे, उनको राफेल के भ्रष्टाचार के फाइल और कागजात नहीं दिखाना चाहते। अब साफ है कि चौकीदार ही चोर है। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। राफेल को लेकर जो प्रधानमंत्री ने कल अपनी बातें रखी, क्या प्रधानमंत्री इसका जवाब दें? देश जवाब मांग रहा है। राफेल के वो कौन से रहस्य हैं, राफेल का वो कौन सा गड़बड़झाला और घोटाला है जो मनोहर पारीकर जी के बेडरूम में, फ्लैट में, उनके रहस्य में बंद है? क्या चौकीदार मनोहर पारीकर जी को से इसीलिए घबरा रहे हैं क्योंकि वो सारा गड़बड़झाला और भ्रष्टाचार, फाइलों की वो सारी परतें और नोटिंग्स, जैसा मनोहर पारीकर जी के मंत्री ने बताया, उन फाइलों के अंदर बंद हैं जिनकी कॉपी मनोहर पारीकर जी के पास है? और क्या चौकीदार इसी गड़बड़झाले और घोटाले के चलते ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से राफेल घोटाले की प्रोब इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहते? क्योंकि चाहे भाजपा के भी सांसद हों, राफेल की फाइलें तो आएंगी ही, और जब फाइलें आएंगी तो घोटाला उजागर होगा, भ्रष्टाचार उजागर होगा और चौकीदार पकड़ा जाएगा। और इसीलिए चौकीदार आज हर सवाल का जवाब देने से बच रहे हैं। वो कहते हैं उन पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं। ये है व्यक्तिगत आरोप मोदी जी, ये साक्ष्य और तथ्य हैं मोदी जी आपके ऊपर व्यक्तिगत आरोपों के। और दूसरा व्यक्तिगत आरोप है जो फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलेंडे ने आप पर लगाया था कि पूरी डील में आपने ये शर्त रखी व्यक्तिगत तौर से कि अनिल अंबानी को ठेका मिलेगा सरकारी कंपनी से छीनकर तो जहाज खरीदे जाएंगे, वरना नहीं। इस बात की पुष्टि फ्रांसवा होलेंडे जी ने दोबारा की। और आज जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने फ्रांसवा होलेंडे की बात काटने से इनकार कर दिया और कहा कि वो तो उस कमरे में थे नहीं, फ्रांसवा होलेंडे थे। और अब तो आपके पूर्व रक्षा मंत्री आपकी राफेल की फाइलें लिए बैठे हैं और कहते हैं कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि राफेल की फाइलें
उनके बेडरूम, उनके फ्लैट के अंदर बंद हैं, उन फाइलों में वो कौन सा गड़बड़ झाला और भ्रष्टाचार है जो बंद है, आज इस बात का खुलासा संसद और देश दोनों जानना चाहते हैं। Ranjit, how can the Congress be so sure that those documents are actually incriminating? The incriminating facts are already in public domain. The manner and fashion in which every procedure was bypassed, every law was given a go by, the benchmark price was changed by Prime Minister against the objection of the Defence Ministry, the Defence Acquisition Council and the Defence Audit Wing. We have stated so in the past that the country lost 3 billion euros on account thereof. It is all recorded in the files. And those files are with Mr. Parikar. Why are those files being hidden? If Mr. Modi has nothing to hide, then why is Mr. Parikar keeping those files in his bedroom and threatening everybody that nobody can do anything against him, for he has the Rafale files? Because the secrets are all recorded on the files, and the day those files are out as stated by and threatened by Shri Manohar Parikar himself, then it will be proved what we have always said, that Rafale is the biggest scam of India, and the person accountable for it is Prime Minister Shri Narendra Modi himself. सर आप चाहेंगे मनोहर पर्रिकर शुड कम क्लीन, उनको आकर के बताना चाहिए कि किन फाइल से बात हुई और उसकी क्या डिटेल। मनोहर पारिकर जी के पास जो राफेल की फाइल हैं वो देश के सामने आए, वो रहस्य उजागर हो, अब ये आवश्यक हो गया है, क्योंकि हम नहीं कह रहे, ये मनोहर पारिकर जी के मंत्री बता रहे हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में जो हुआ, जब उन्होंने कहा उनका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उनके पास राफेल की फाइल्स हैं। ये कन्वर्सेशन कब का है सर? ये जो पिछले हफ्ते जो कैबिनेट मीटिंग हुई है गोवा की, ये उसका कन्वर्सेशन है। और इसकी ऑथेंटिसिटी क्या आप लोगों ने क्रॉस चेक की है? क्योंकि सबसे पहला सवाल हमने आदरणीय मित्र सारे तथ्य और ऑडियो आपके समक्ष रख दिए। अब इस बात का जवाब प्रधानमंत्री मोदी जी को देना है। मुझे मालूम है कि वो पत्रकारों को जवाब देने के आदी नहीं, वो कैप्टिव इंटरव्यूज ही करते हैं, परंतु अब तो हर रोज राफेल के रहस्य की नई परतें खुल रही हैं, तो वो आगे आए और जवाब दें। और मनोहर पारिकर जी के पास जो फाइलें हैं, अगर कुछ गलत नहीं है तो उन्हें सार्वजनिक करने में ऐतराज क्या है, और अगर कुछ गलत नहीं है तो आज संसद के अंदर मेरे सांसद साथियों के समक्ष कहें कि वो जेपीसी की जांच के लिए तैयार हैं। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। रणजीत जी, जेपीसी को लेकर लगातार हाउस लोकसभा में कांग्रेस की डिमांड कर रही है, जेपीसी को रखा है, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि कुछ स्टैंड चेंज हुआ है, आप लोग बहस के लिए तैयार है। लोकसभा में कहा जा रहा है कि जो बहस होगी रफाल पे, उस पर कांग्रेस रेडी है। जी बिल्कुल नहीं, कांग्रेस अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय कमेटी से जांच की अपनी मांग पर अडिग है। वो परंतु संयुक्त संसदीय समिति की जांच की जरूरत क्यों? वो सारे तथ्य आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और नेतागण संसद के पटल पर रखेंगे, क्योंकि केवल और केवल इस पूरे घोटाले की जांच ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कर सकती है, जो सारे तथ्य भी मंगा सकती है, जो राफेल के वो सारे रहस्य जिसके राजदार तथा कथित तरीके से अब श्री मनोहर पारिकर भी हैं, जो उनके कथित बयान में सामने आ रहा है, जैसा उनके मंत्री ने कहा, तो वो सारे तथ्य सामने आएंगे, साक्ष्य आएंगे, सबको बुलाया जाएगा, एविडेंस रिकॉर्ड होगा, प्रधानमंत्री को जेपीसी के सामने जाना पड़ेगा और घोटाला और गड़बड़ झाला सामने आ जाएगा। He is speaking to another person whose confidentiality we have deliberately kept confidential. I mean, whose identity I have kept confidential. That's why you will find the copies that I am serving you, I have written X. Sir, Mr. Yashwant Sinha, Arun Shourie and Prashant Bhushan are all set to move to the Supreme Court.
to file a review petition with regards to the Rafale judgment. Every individual has a right to do what they choose fit. Congress party never went to the Supreme Court, for we always maintained, and please take out our proceedings much before even the judgment came. Supreme Court is not the forum, as Supreme Court itself said. They affirmed what we had said. They don't have jurisdiction to investigate into the Rafale scam on account of the fact that Supreme Court cannot have access, and they were not given access to the Rafale files where benchmark price was changed, where a 30,000 crore was snatched away from HAL public sector undertaking and given to Mr. Anil Ambani's company, which is a 12-day-old company. The justification for reducing 126 aircraft to 36. Why was Cabinet Committee on Security approval not taken? Why was defense procurement procedure violated? How was corruption happening at every step in the Rafale scam in order to fix the deal? All these are matters of evidence and documents which were neither before Supreme Court nor can they go before it. And that's why we have maintained JPC is the only way forward. But anybody is free to move the Supreme Court. It's a democratic country. सुरजेवाला जी, आप जेपीसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 4 ही महीने बचे हैं इस लोकसभा के पास। जी। तो अभी यदि जेपीसी बिठा के दी जाती है, तो फिर एक नए सिरे से जेपीसी बिठानी होगी आगे उसका। ये भाजपा का नजरिया है। हमारा ये मानना है कि जेपीसी आज बिठाइए, 10 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। फाइल्स देखेंगे, साक्ष्य देखेंगे, प्रधानमंत्री को बुलाएंगे, मनोहर पारिकर जी को बुलाएंगे, अनिल अंबानी जी को शायद समन करेंगे, HAL के प्रमुख को बुलाएंगे, निर्मला सीतारमण जी को बुलाएंगे। 10 दिन में सारे मामले का पटाक्षेप हो सकता है। इसलिए ये उन भारतीय जनता पार्टी का आर्ग्यूमेंट है कि जब वो चले जाएंगे तो फिर नई जेपीसी बिठानी पड़ेगी। पर मोदी जी आपके साथ तो इसी संसद के अंदर न्याय हो जाएगा, क्योंकि राफेल का भ्रष्टाचार और घोटाला सामने है। Because they are running scared, because Prime Minister is personally scared that the Rafale scam is getting unveiled by the day. Prime Minister does not want to share the various facets of the Rafale scam with his own party members, for in JPC majority will be NDA and BJP. And this conversation today now further cements our demand for JPC. Let Prime Minister come forward and tell what are those secrets, bungling, corruption, malfeasance and scam that exists in the Rafale files, which are being now held, a copy of which is being now held by the then Defense Minister and present Chief Minister Shri Manohar Parrikar. Does it not establish कि दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है? Thank you.